Welcome to Success Speaks. Today with me is Basirul Haq. He is from Jammu and Kashmir and he has a very interesting success story. Welcome Basir. Thank you. Congratulations to you for a grand success. And your success story is really very interesting. Thank you. Because you began in 2010 and finally you landed in 2014 examination in IAS. So finally success matters. What ultimately matters is a lot. Success, right? Yes. How did you feel after when you got final success in 2014 examination this year? I feel very humble and in a very prescribed manner that I feel confident that finally what I want to achieve, finally I achieved, and that achieve was 90%. And when the cadre allocation was out, I feel that 100%. You got all the things what you got a choice. Now the challenges would go ahead. Yes. But were you confident this time that you would qualify finally in this examination? The level of confidence was higher before appearing this exam, because in my last 3 attempts, I feel confident, but I didn't recognize that I'll land in the finalist. Okay. But this attempt, you were confident that I feel confident that I will land with a good rank, not with 46th rank, but with good rank, that I'll absorb into the Indian Administrative Services. So did you get a rank of your choice more than you really expected, or you got less than expected? I expect that my rank will be around 100 or 150 in between that. But this is really a good thing for me that I secured 46th rank. This is very interesting because that shows your perseverance, that shows how you were determined with the success plan with your mind. In between you took also state civil services, you qualified that also. Yes. So let me first know about you and your family, because you come from a small place, as I know, yes, from Jammu and Kashmir, and it will be a big inspiration for the people of all over the country, yes, who are coming from small village and places there. So which place you belong to in Jammu and Kashmir? I belong to Rajouri district of Jammu and Kashmir state. Yeah, you belong to Rajouri district, but did you start your life from a city or town or a small village? I start my birthplace is village. The name of my village is Kalas. Okay. And the name of my town, that is Thanna Mandi. And I did my basic education up to 10th class from Thanna Mandi town. Okay. And due to some unavoidable circumstances, we shifted from Thanna Mandi town to Rajouri town. Okay. And due to militancy, and I did my 12th class from Rajouri district. And after that, I completed my graduation in Bachelor of Engineering in Computer Sciences from Government College of Engineering, Jammu. Jammu, there you. And after that, I started preparing for civil service. So now talking about your family, particularly your father, what he does? My family is a joint family. I have 2 uncles and my father. So we have a joint family. My grooming is actually groomed in joint family atmosphere. So it was very cordial. Now it is also cordial for me. But what we achieved and what we learned, a lesson from joint family, that if my father start or if my father think that we will separate from his or her, from his brothers, so it will be very difficult for him, because a 4th class employee can't do anything of his own. Right. And my uncle, that is it means Muhammad your father was in government job? Yes, government job, but in 4th class employee. And my uncle, Muhammad Nazir,
he retired as a zonal education officer Okay. from Thanamandi town. So he inspired me a lot. I'll He played as a main- or not do, but he always inspired me that definitely you will do it. And then the time come that So he will proved to be very a great happy. mentor for Yes, you from he the beginning. बहुत अच्छे इंसान है मेरे लिए जी, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और जिसकी वजह से इतनी सक्सेस जो है वो मुझे मिली। इस एग्जामिनेशन को आपने जो है 5 बार देखा, प्रीलिमिनरी से लेकर के इंटरव्यू तक का जो सफर है, 2010 से लेकर के फाइनली 2015 में जो फाइनल इंटरव्यू दिया, जी तो इसमें से आपको क्या लगता है व्हाट इज द बेसिक कैलिबर एंड क्वालिटी और यू से एप्टीट्यूड रिक्वायर इन ए कैंडिडेट जो देर भी हो लेकिन इंसान को अल्टीमेटली एक सक्सेस के रास्ते पे ले जाता है? जी, सबसे पहले हमने अपने आप को ये समझा देना कि वॉट एवर मे बी द डिफिकल्टीज वी फेस इन दिस जर्नी वी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस। हमें मतलब है उससे कि- बाहर आना ही आना है, लेकिन इरादा जो है वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है एक बार आदमी इरादा कर ले तो फिर वो पीछे मुड़ के कम ही देखता है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जब कोई आदमी चल रहा होता तो जो हम डिफरेंट रिलीजन को अगर मानते हैं तो जो भी मानता है उसको ये लगता है कि एक बार हमने हिम्मत कर ली तो फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मदद खुदा वो तो हर होनी ही religion होनी में है। हर एथिक्स में इस बात ये की इस चीज़ का है ही है। तो एक बार हम निकल चुके तो उसको फिर करना पूरा करना ही है। अच्छा, कई लोगों के अंदर में जो इरादा ये नहीं बन पाता है तो क्या कारण हो सकता है कि लोग जो है बोलते तो हैं कि इच्छा है कि मैं बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपने इरादे को मजबूत नहीं कर सकते। थोड़ा सा हवा का झोंका आया, एक बार कहीं मिस कर गए, फेल हो गए, प्रीलिम में हो गए, छोड़ देते हैं। तो मेरी राय इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आई हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट। वो ये है कि अगर आपने इरादा कर लिया तो फिर तो इरादे से हटना तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले वो इरादा एक्चुअली होता ही नहीं, होता लोगों ही का। नहीं। अगर लोग आप ये समझें कि मतलब कि मुझे ये चीज़ करनी है तो फिर आप बहक जाएं जाके या आपके कदम डगमगा जाएं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इरादा कर लिया तो आप लड़खड़ाते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचे। उसके लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से जरूरी है कि जो मंजिल है उसके प्रति जो गोल है, गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने डायरेक्शन क्या लिया है, बिल्कुल। आपको पहुंचना क्या है। पहुंचना जब उससे रिलेटेड इंसान को उसका स्वाद, उसके साथ जो क्वालिटी, उसके साथ नाम शौहरत सब जब ध्यान में आता है, तो इसी प्रकार से जैसे दिमाग में बैठ गया कि मुझे आईएएस बनना है, जी बिल्कुल। तो आईएएस बनने के लिए अब उसके से रिलेटेड जो उसका ऑरा है, जो क्वालिटीज हैं, प्रेस्टीज है, जब सब याद रहता है तो इंसान को उस बीच की जो तकलीफ है उसको भूल सकता है। भूल सकता है, बिल्कुल भूल सकता है। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो आदमी वो सारी चीजें भूल जाता है। जैसे कि आपके पास इतना लंबा सफर रहा, हाँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा कि सब वॉश आउट हो गया, कुछ अब तो चीजें तब दुनिया आपको ये बोलती है कि आप समझे तुम्हारे रुखसार पे तिल का मतलब कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तब वो ये नहीं बोलते हैं कि आप कितनी बार फेल हुए, तब यही बोलते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, आप सच में इस लायक थे। लेकिन तैयारी के दौरान भी हमें अपने आप को ये बताना है कि हम इस लायक हैं, हम कर सकते हैं। इरादा करना जरूरी है। लैंड कहाँ करता है आदमी, ये तो ऊपर वाले It's a very old saying, failures are pillars of success. बिल्कुल That is again very important, provided you realize. हाँ, आपको अपनी गलती का एहसास होना और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तैयारी में हमेशा अपने आप को जो है वो साथी बनाना, सोल्यूशन, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम का पार्ट बन जाएंगे तो सोल्यूशन वाला पार्ट आपका छूट जाएगा। तो हमें जब सोल्यूशन ही यहाँ चाहिए कि हमें सिलेक्शन करवानी है, तो इट्स बेटर टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें उसके साथ चलना It's बहुत better जरूरी always to be part of solution. ऑलवेज पॉजिटिव। और ये हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। In this exam, time management is a very crucial issue, right? And समय का प्रबंधन, समय को अपनी हिसाब से मेंटेन करना, वो बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी बिल्कुल। तो आपने हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस, वर यू आर कंसिस्टेंट रीडर और यू आर मेकिंग सम फ्लक्चुएशंस इन योर टाइम? सर, इसमें मेरा जो ओपिनियन है और जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है। वो इस तरीके से है कि हमें ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो 2 तरीके की करनी है। एक तो ये है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें सिलेबस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो वो जब तक नहीं होंगी, तो चाहे आप 15 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें दिन में, तो वो भी कम होंगे अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। फिर आपको जो है वो सिलेबस की नेचर को समझना, फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हमें उस चीज़ को समझना है। और उस दिन हम जिस दिन एक बार समझेंगे तो फिर जर्नी जो है वो 2 साल के बजाय 6 महीने की हो जाएगी, 2 साल के बजाय जो है वो 8 महीने की हो जाएगी। तो ये 2 फेजेस हैं, इस पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमें फंडामेंटल्स पे काम करना कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की, और दूसरा ये है कि हमें टाइमली सिलेबस जो करना है, और उसके लिए 5-6 घंटे, जैसे मैं इन सर्विस कैंडिडेट था तो मैं
हार्डली 5-6 घंटे जो है वो दे पाता था। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो थी वो सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से थी, और उसके बाद जब मैं कोई भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने बैठता था तो मैं 5-6 घंटे के अंदर अपना 25 और 30% सिलेबस जो वो रिवाइज कर लेता था। तो ये 2 फेज़ हैं, हमें इन पे वर्क करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट आपका स्ट्रांग है तो सेकंड बहुत आसान है। मेन चीज वो है कि सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर हो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। बिल्कुल। तो अभी जबकि आप लास्ट अटेम्प्ट में जी, यू आर इन सर्विस ऑल्सो, यू आर वर्किंग एज वीडियो, Yes. वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, बिल्कुल बिल्कुल बट स्टिल यू कुड स्पेयर 4-5 आवर्स टाइम टू स्टडी एंड ऑल देयर, राइट? और वो भी मैं अपनी नींद से कट करता था, हाँ, क्योंकि मैं ऑफिस टाइम तो कम नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन थे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे बोलते थे अरे रिज़ाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे ये था कि अपने आप में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मुझे था कि कोई बात नहीं, मुझे 5-6 घंटे जो हैं ये मोर देन एनफ है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है जी, उसको अपने स्ट्रेस को ओवरऑल कैसे मैनेज किया? मैंने उस स्ट्रेस को मैनेज इसलिए किया कि मैं स्ट्रेस में इसलिए आता था कि यार मैंने ये चीज़ जो है वो रिवाइज़ नहीं की। मैं स्ट्रेस में इसलिए कभी भी नहीं आता था कि मैं ये एग्ज़ाम शायद क्लियर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। टेंशन ज़रूर होती थी, लेकिन मैं अपने आप को समझा लेता था कि नहीं, आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको सिलेबस अपना याद है, आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको एक पेपर के लिए 2-3 दिन चाहिए पूरे क्वेश्चन पढ़ने में, उनको समझने में। और ये एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे सोच लिया और उसके बाद सोच बंद हो गई, ऐसा नहीं। तो मतलब वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑल 24 आवर्स ऑफ द डे जो है वो चलता रहता है कहीं ना। कभी कभार ऐसा होता था कि मैं सोने जाता था तो टेंशन तो मुझे भी होती थी, अब इंसान आम आदमी हूँ मैं भी, तो मुझे टेंशन होती थी कि कैसे मैं रिवाइज़ करूँ। तो मैं कभी कभार क्या करता था, अपना सिलेबस लिया, मुझे सिलेबस याद होता था कि मेरे सिलेबस फर्स्ट पेपर में ये चीज़ें हैं, सेकंड पेपर में ये चीज़ें हैं, थर्ड पेपर में ये चीज़ें हैं, तो मैं उन चीज़ों के बेसिस पे अपने आप को रिवाइज़ करता था कि इस मैंने ये किया, इसमें इसका ये पार्ट है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन के क्या इश्यूज़ हैं, तो पॉपुलेशन के इश्यूज़ जो थे वो मेरे दिमाग में रहते थे। भाई पॉपुलेशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है। अब हमने कैसे इस रिसोर्स को एज ए ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, कैसे हमने इसको स्किल बनाना है, तो उसके लिए जब आदमी दिमाग चलाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड हो जाती हैं उसमें। हाँ, वो तो फिर एक इंसान का थॉट्स प्रोसेस में बिल्कुल बिल्कुल थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस आपको एक करना बहुत समय जो है, इस समय के दौरान में एक तो होता है पढ़ाई लिखाई, कुछ पर्सनल टाइम होता है इंसान को, जी जी। जैसे हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो कुछ आपने डेवलप की इस बीच में? मेरी हॉबी तो वैसे बड़ी अलग सी हैं, बाकी लोगों से हट के लोग सोचते होंगे कि कौन सा प्राणी है ये। तो मेरी एक तो हॉर्स राइडिंग मेरी हॉबी है, दूसरा इंटरेक्शन विद द पीपल है, और लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस है। तो पहली 2, बाकी की 2 तो मैं कर सकता था, लेकिन हॉर्स राइडिंग मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। यदि आपको एक अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए कैंडिडेट के अंदर जो क्वालिटी चाहिए जी, तो उसको यदि हम कहें कि आप उसके 3 या 5 क्वालिटी कुछ बताइए। दूसरी, हमारी कोशिश जो है वो बेटर है, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम क्या एक्शन करेंगे और उसका क्या नतीजा हमें मिलेगा। अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका नतीजा हमें मिलता है कि हम फेल हो जाते हैं। अगर उसी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो इरादा जो है ये बहुत ज़रूरी है, और हमारी गाइडलाइन जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो है सिलेबस, और उसके बाद अगर कोई मेंटर हमें मिलता है तो उसको हमें फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बच जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को नहीं मिलता तो वो नहीं बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिले तो अच्छी बात है, ये उसकी मैं किस्मत देखता हूँ कि है। आपकी जो मेंटरशिप है उसमें जो इंस्पिरेशनल हैं वो उर्दू के शायर जो हैं वो बहुत अपने क्योंकि रोल प्ले किया आपके लाइफ। बिल्कुल प्ले करते हैं, क्योंकि जो गालिब हैं या इकबाल हैं या मीर हैं या फैज़ हैं, वो आदमी को ये सिखा देते हैं कि तुम भीड़ में अकेले तो ज़रूर हो, लेकिन फिर भी 1.25 करोड़ के मालिक हो। वाह वाह, बहुत अच्छी ये चीज़ जो है ये बहुत लेकिन ज़रूरी है। हर इंसान आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में मोटिवेशनल लाइन लोग भेज तो देते हैं जी, लोग लाइक भी कर देते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी का बिहेवियर तय करता है कि आपको मोटिवेट होना या नहीं होना। अगर आप मोटिवेट होंगे तो मैं समझता हूँ कि आप कैसे भी माहौल में, जैसे मैं ब्लॉक डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था, जहाँ पे तैयारी का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं,
उनको क्या लगता है कि आर्ट एंड कल्चर क्या होना चाहिए, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उनको ये चीज़ के लेना देना ही नहीं है कि हमारे जो है वो उर्दू लिटरेचर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे माहौल में भी अगर आपने ये इरादा किया है कि मुझे कुछ करना है तो नोबडी विल स्टॉप। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इंस्पिरेशनल लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है, सुनने तो सब लोग देखते हैं, फेसबुक में ट्रैवल करता रहता है, व्हाट्सएप पे, लेकिन काम उसी का आएगा जो उसको अपने जीवन में उतारे और उसको समझे। ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना। तो वो है ही ना अल्लामा इकबाल का शेर के इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो। पुख्ता हो गया मतलब डेडिकेटेड। हाँ। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, कश्ती भंवर में डाल के कभी घबराया नहीं करते। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ये चीज़ है कि आप रहें कहीं भी, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकेगा। भले हर आदमी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आप सक्सेसफुल बन जाए। तैयारी के दौरान में लोग पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ ली, सब कुछ है, बट मेरा जो अनुभव रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि नॉलेज इज कॉमन टू एवरीबॉडी, स्किल एंड विजडम दैट इज योर्स, कि व्हाट डू यू डेवलप दैट वे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? इज इट जस्ट रीडिंग एंड लॉट ऑफ रीडिंग, और यू फील दैट नॉट ओनली रीडिंग बट मैनेजिंग सेल्फ विथ इमोशंस, विथ टाइम, विद स्ट्रेस, विद विजडम? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना तो ये है कि जो हम मैनेज करते हैं अपने आप को कि मार्केट में या आपके पास बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल है, तो हर मटेरियल को हम नहीं पढ़ सकते। हमें पढ़ना क्या है, उसके लिए हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको मेमोराइज़ करना है, और मेमोराइज़ ही नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर सिलेबस। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें मटेरियल या किताबें पढ़नी है। और पढ़नी इन द सेंस ये है कि हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में डिफाइन है, हमें बाकी की चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब थोड़ी सी बात हम लोग जो एग्जामिनेशन के अलग स्टेजेस पे करते हैं कि एज यू हैव गॉन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 times एंड यू क्वालिफाइड ऑल 4 times, आपको हर बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मिला, विच इज स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली, जिसके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज है, एक एप्टीट्यूड पेपर है। इस बार से एप्टीट्यूड पेपर को क्वालिफाइंग नेचर भी कर दिया गया, तो नेचुरली जीएस के ऊपर सारा लोड आ गया कि किसी कैंडिडेट का जीएस में परफॉर्मेंस प्रिलिमिनरी कैसा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि किसी को प्री क्वालिफाई करने में श्योरिटी रहे, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड ऑल 4 times, तो जिससे वो क्या खास बात थी जिसको आपको लगता है कि यू आर एबल टू क्वालिफाई प्री ऑल द 4 times? देखिए, इसमें मैं प्रीलिमिनरी के लिए जो कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करता था। मेरी पढ़ाई जो है वो हमेशा मेंस ओरिएंटेड रहती थी, और मेंस में ऐसी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो प्रीलिमिनरी में आती हैं। करेक्ट। तो इसलिए वहाँ पे आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। और आज का पेपर अगर हम उठा के देखें तो मोर देन 50-60% जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे राइट। वो ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं वो, बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वेरी राइट। कि जैसे हिंदुस्तान के इस पार्ट में ये फसल होती है, या फॉर एग्जांपल दिस क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र में होती है या नहीं होती है, या नॉर्थ ईस्ट में होती है या नहीं होती है। तो अगर हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि भाई इस क्रॉप्स के लिए ये क्लाइमेट चाहिए, ऐसा रेनफॉल चाहिए, ऐसा टेम्परेचर चाहिए, तो अगर हमें ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम डिफाइन कर लेंगे उसको कि ये क्रॉप यहाँ पे होती है या नहीं होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि टी जो है वो कश्मीर में होती है या नहीं होती है, टी जो है वो मध्य प्रदेश में होती है या नहीं होती है, तो अगर हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि इसको एक बहुत जेंटल सा स्लोप चाहिए, रेनफॉल जिसमें थ्रू आउट द ईयर चाहिए, और टेम्परेचर इतना चाहिए, तो हमें पूरे इंडिया का जो है वो होल जोग्राफी पता है, तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं बड़ा इजीली कि भाई टी की जो है प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होगी। तो हमें ये चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, उसके लिए बड़ा आसान होता है कि वो पीटी अपना निकाल देता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को खासकर नेगेटिव मार्किंग में इफ़ यू हैव मार्क्स अराउंड 50% और मोर देन 50% यू विल बी सेफ़, तो आप उसमें सेफ हो जाते हैं। लेकिन ये 50% आपके तभी आएंगे जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। इसका मतलब है कि जो इंसान पहली बार जो तैयारी कर रहा है, खास करके मैं जानना चाहूँगा जी कि अकॉर्डिंग टू यू द पर्सन हु इज फर्स्ट टाइमर इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जी, सो अकॉर्डिंग टू विथ योर एक्सपीरियंस व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट द पर्सन? सबसे पहले कि वो सिलेबस, जैसे हमारे कुछ कन्वेंशनल पार्ट्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, तो या बेसिक साइंस है, हमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन सब्जेक्ट्स पे लेना बहुत ज़रूरी है।
जब हमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो हमारे जो फैक्ट्स याद करने की पावर है जो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर ज़्यादा हो, जैसे हमें ये पता ही नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये मतलब एक बड़ा आसान सा सवाल मैं आपको बताऊं कि जैसे व्हाट इज़ द नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मिसाल के तौर पे हमें दिल्ली पता नहीं है लेकिन हमें ये श्योर होना चाहिए कि कलकत्ता चेन्नई नहीं है। राइट राइट। तो अगर कलकत्ता चेन्नई नहीं है या और सिटी हमें पता है जयपुर नहीं है, तो अब चौथा ऑप्शन जो है सपोज प्रिलिमिनरी में, अब चौथा ऑप्शन जो है वो उसका आंसर हो या ना हो वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, चाहे आपको पता हो या नहीं हो। तो ये चीज़ें जो हैं दिस इज़ द लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्ज़ाम। प्लस आपने फैक्ट्स और नॉलेज जो है वो अच्छी कलेक्ट करनी है जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे पास बेस्ट वे है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर मेहनत करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर मेहनत करें, तो आपका प्रिलिमिनरी डेफिनेटली इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेलेवेंट चीज़ पढ़ना, रेलेवेंट पॉइंट्स को याद रखना, बिल्कुल, और एक रिटेंशन की ताकत की कैसे हम अच्छी बातों को याद रखें। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर है तो आप चीज़ें रिटेन करने भी आसान इंटरेस्ट जगेगा। मेरा मानना है ये, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल और जनरलाइजेशन। तो यदि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हम कहें कि 3 या 5 पॉइंट कुछ बताइए कि क्या होना चाहिए क्वालिटी। सबसे पहले ये है कि हमें जो कन्वेंशनल एरिया है हमें उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस पोर्शन को, या एनवायरनमेंट है, इस पोर्शन को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें टाइमली रिवीजन करनी है, और टाइमली रिवीजन जो है इसी के साथ मैं तीसरा पॉइंट जोड़ूंगा कि रिवीजन जो है वो हमें थ्रू क्वेश्चंस करनी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मार्केट में आजकल अवेलेबल होते हैं, हमें इन क्वेश्चंस का देखना है कि ताकि हमें वो अंदाजे बयां तो यूपीएससी का पता लगे कि वो किस बात क्या चाहती क्या है, तो वो चीज़ें जो हैं वो समझना ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट ये है कि बिल्कुल भी नहीं हम सोचते हैं हमारे अंदर एक बड़ी गलत सी जो चीज़ आ जाती है, वो मेरे अंदर थी तो शायद बाकियों के अंदर भी मे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर हो, कि हम जो है वो सिलेबस अपना 2 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि जो इतने बड़े सिलेबस को 2 दिन में ख़त्म कर दे। जो समय तो लगेगा, टाइम आपको लगेगा। हाँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सिलेबस मैं इतने टाइम में कवर कर लूँगा, लेकिन ये तभी कर पाता है जब आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। और एक फ्रेम होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेम होना कितने दिन में बिल्कुल काम होना खत्म कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट, जैसे मैं आपको बताऊं कि टारगेट हमेशा 2 तरीके के ही बनाने हैं हमें, एक तो रियल हो और दूसरा भी रियल हो। कोई भी आइडियल टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ख्याली दुनिया में चले जाते हैं तो बाद में जब क्या आता है कि वो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, तो जब आपको मालूम है जन्नत की हकीकत तो फिर ऐसी जन्नत क्यों सोचनी कि जो आपको ना मिले कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आदमी की खुद की भी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि प्रिलिमिनरी में अब जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सीसेट का इम्पोर्टेंस डिमिनिश हो गया, चूंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बट इससे कि कोई आदमी फिर इसमें भी धोखा ना खाए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मेरा मानना सर ये है कि सीसेट क्वालिफाइंग ज़रूर है, लेकिन इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। अगर आप वही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको भी इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। जैसे उसमें जो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बड़े ट्रिकी से होते हैं, जैसे रीजनिंग्स है, मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आदमी को थोड़ा सा अपना आईक्यू चलाना चाहिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी कंप्रीहेंशन तो मुझे लगता है वो उससे निकल जाएगी, उसमें इतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि आप 1 महीना पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अप्रोच है कि जैसे कंप्रीहेंशन है तो न्यूज़पेपर हम हर रोज़ पढ़ते हैं, तो एक वैसा आदमी का होना भी चाहिए, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े और उसका एसेंस समझ में आ जाए कि मैं क्या जरूरी है। पढ़ के ना समझ में आए तो फ़ायदा कुछ नहीं। और फिर रीजनिंग मैथमेटिक्स के बड़े आसान से सवाल पूछते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें ये बोझ नहीं इसको मानना। ये मुश्किल एग्ज़ाम तब बनेगा जब हम ये सोच लेते हैं कि ये एग्ज़ाम मुश्किल है। बोझ बना गया। हाँ, ये बोझ तब बनता है जब हम ये सोच लें कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। द मोमेंट हम ये सोचेंगे कि इसमें हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, 5-6 घंटे और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इतनी हम करेंगे तो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यही अप्रोच चाहिए, इससे ज़्यादा कोई अप्रोच नहीं चाहिए आपको। मेन एग्जामिनेशन का जो टाइप है या पैटर्न है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्री में जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नॉलेज जो है वो कैंडिडेट का टेस्ट किया जाता है, और मेंस में सिर्फ नॉलेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस जो आदमी का है कि क्रिटिकल एबिलिटी से वो कैसे चीज़ों को, सिचुएशंस को देखता है और उनको एनालाइज करता है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं।
और उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो इन डेप्थ होनी चाहिए कि कोई कैंडिडेट जो है वो सोसाइटी की एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखता है, किस अप्रोच से देखता है, और फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, या कोई चीज़ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन जो है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए है या नहीं है। इस तरीके की कुछ अप्रोचेस जो हैं ज़रूरी हैं जो इन स्टेजेस में यूज़ होती हैं। Optional subject selection is really always a bothering question for the candidates. जी बिल्कुल। And although you have a background of engineering, जी जी जी। but you have taken a subject like Urdu. उर्दू लिटरेचर। Right. So Urdu literature you have taken. जी। So according to you, what should be the criteria of selecting one optional subject? देखो इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, आई थिंक वही लास्ट क्राइटेरिया भी होता है कि आदमी की इंटरेस्ट किस में है, आदमी का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल ही नहीं है, यू डोंट फील द कंफर्टेबल और कंपेटिबिलिटी विद द सब्जेक्ट, देन यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू चूज योर सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल। तो आपको अपनी कंपेटिबिलिटी जो है वो सोचनी ज़रूरी है कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ कंपेटिबल हूँ या नहीं। तो इसलिए आज के टाइम में एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल एक ही है, और वेटेज जो है वो जनरल स्टडी और एसए की जो है वो बढ़ गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑप्शनल की सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो जनरल स्टडीज़ को बड़ा अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो उसी जनरल स्टडीज़ के पार्ट को ही पढ़ के उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये मेरा मानना है। बेसिकली जब समझ में ना आए सब्जेक्ट क्या लेने हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर टू फोकस फॉर सम टाइम ऑन जनरल स्टडीज। देन जनरल स्टडी विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सेवरल आइटम सब्जेक्ट इन दैट। एटलीस्ट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा उस प्रिपरेशन में। तो जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप, मुझे लगता है, सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सिलेक्शन का आराम से कर सकते हैं। नाउ व्हाइल मेकिंग ए प्रिपरेशन फॉर essay particularly, because you have got a very good marks in essay. Yes. So what could be a good quality of writing a good essay and how to prepare for it? देखो, जैसे हमारे सिलेबस में ही बहुत अच्छे से डिफाइंड है कि सिंपल ग्रेजुएट कैन आंसर द क्वेश्चन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन। हमें किसी भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है और मास्टरी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट जो एस्से का टॉपिक है उसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत जुडिशियसली हमें सेलेक्ट करना है। मतलब उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है और इस पर मैं अच्छे से लिख पाऊँगा। हमें वो टॉपिक सेलेक्ट करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे पास इसके ऊपर लिखने के लिए क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो आता है वो ये आता है कि किस तरीके से आप एस्से को स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे उसको जो है स्टेप बाय स्टेप एक नई जो है डायरेक्शन दे रहे हैं, और पढ़ने वाले को लगे कि अब नए पैराग्राफ में एक नई बात कहने जा रहा है, और वो पहले पैराग्राफ से ही समझ जाए कि दूसरे पैराग्राफ में वो ये बात कहना चाह रहा है। और दूसरा जो सिमेट्री है वो मेंटेन होगी। और तीसरी बात ये है कि आपके अंदर क्रिटिकल एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप किसी एग्जाम्पल को जो है वो पॉजिटिव वे में पेश कर रहे हैं और सेम एग्जाम्पल को आप नेगेटिव वे में भी पेश कर रहे हैं। तीसरा मेरा जो मानना, जो मैं भी जैसे लिखता हूँ, कि आपका एस्से जो है मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि पैराग्राफ्स ही आ रहे हैं, पढ़ने वाला जो परेशान हो रहा है। आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, उसके बाद पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर पैराग्राफ या फ्लो चार्ट या फिगर्स जो हैं वो आप एक्चुअली बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये आपके जो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इन चीज़ों का आदमी ख्याल रखे तो मुझे लगता है वो एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर एस्से में कर सकता है। एस्से में इंट्रोडक्शन, मिडल एंड एंड, ये तीनों जो पार्ट है उसमें, जी, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू यू फॉर द? देखो, एस्से इंट्रोडक्शन जो मेरा मानना है, क्योंकि एस्से के 3 पार्ट होते हैं। एक मतलब अगर हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करें तो एक आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा आता है बॉडी पार्ट और तीसरा आता है कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये डिफाइन कर दें क्लियर कट मैनर में कि व्हाट यू आर गोइंग टू से इन द नेक्स्ट बॉडी, कि आप उस आदमी से या उस टॉपिक पे क्या कहना चाह रहे हैं। ये बड़ा अच्छे अंदाज में और बड़ी ल्यूसिड लैंग्वेज में, आसान जुबान में क्लियर कट जो है वो इंट्रोडक्शन में मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद बॉडी में फिर ऐसा लगना चाहिए कि जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो दे के आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। और कंक्लूजन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट से करना चाहिए, ताकि लेने के बावजूद के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आदमी को ये लगे कि नहीं, इससे पॉजिटिव पर्सन,
कि ये अपना, और कंक्लूजन बड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो आप समझते हैं, आप क्या फील कर रहे हैं उस एस्से को लिखने में, तो वो कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लिख कुछ और रहे हैं और बाद में हमने एक फिलोसफिकल कोट डाल दिया एट द एंड, तो हमें वो जस्टिफाई ही ना हो पाए हमसे कि हम एस्से क्या लिख रहे थे, हमने कोट क्या डाला, तो ऑल इन ऑल डिफरेंट हो जाए तो वो मुश्किल हो जाए। तो हमें कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। So a good essay has basically three components. One is the introduction, which should give a summary or essence of the whole एसेंस ऑफ द topic, and then Body the main part. body, which should be going in flow, communicating and remaining around the topic only, not to नॉट अराउंड deviation ना हो गई। डेविएशन बिल्कुल नहीं and conclusion has to be in healthy note. हेल्दी नोट, और वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए जो उसको लास्ट में ये कहे कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, टॉपिक ये था, हमने ऐसा कहा, और हमने पर्सनली या मतलब लिखने में ये लगना चाहिए कि ये आदमी क्या जो है फील कर रहा है लिखने में। In mains preparation, in particularly general studies paper 1, what a strategy you had and what suggestion you would like to give to the future aspirants? I would like to suggest one thing. There is a syllabus of first paper, second paper, third paper and fourth paper, which is clearly defined by the Union Public Service Commission. और उसके बाद सिलेबस को हमने डायमेंशंस के ऊपर वर्क करना है। ये नहीं देखना है कि हमने आज जीएस जो है वो 3 घंटे पढ़ी या 4 घंटे पढ़ी, ऐसा नहीं करना है। हमने सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट जो है वो डिफाइन किया है, कौन कौन सा पार्ट प्रिपेयर किया है, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं है, जो जो पॉइंट हमने डिफाइन किए हैं उनको हम क्रिटिकली इवेलुएट कैसे कर रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं, हम उसको एग्जामिन कैसे कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये समझना सिलेबस का चारों पेपर का बहुत जरूरी है। सही है, ऐसा ही है। They are giving different prefixes also, जी बिल्कुल, एक्सप्लेन, क्रिटिकली इवेलुएट, एग्जामिन दिस, तो ये चीजें इवेलुएट, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और इंसान, मुझे लगता है स्टूडेंट को तैयारी के दौरान भी इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि सेम टॉपिक को बिल्कुल, हाँ, यदि मुझे क्रिटिकली अप्रिशिएट करने के बाद कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे, तब प्रिपरेशन जाकर। हाँ, मतलब आदमी को सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डिफाइन करेगा। तो एक चीज़ तो ये होगी, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द 4 पेपर्स। दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि हमें जो है वो कुछ बुक्स जो हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, या कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपको प्रोवाइड होता है, या डिफरेंट डिफरेंट स्पीच, जैसे किसी पेपर के ऊपर चाणक्य वाले IAS एकेडमी वाले कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें कुछ अच्छी सजेशंस देते हैं या कुछ बुक्स के नाम लेते हैं, तो वो फॉलो कर लेनी चाहिए, लेकिन आइडियाज़ उसके अपने होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ऐसी चीज़ें पढ़ ले और पढ़ने के बाद वो बहुत रट ले और क्वेश्चन जो पूछा उसका सही जवाब ना हो, हाँ, अपने उसके बन जाए उसके। बिल्कुल, हाँ, तो वो आंसर, और दूसरा बात है कि आंसर टू द पॉइंट लिखना है, तो ये स्टैटिक पार्ट हो गया। और दूसरा जो डायनामिक पार्ट होता है, और डायनामिक पार्ट के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपकी जो ग्राउंड है या फील्ड जो है वो ज़्यादा बड़ी है। आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे रन आउट होने का आपको कोई खतरा नहीं है, हाँ, तो आप उस पर जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। और दूसरा जैसे सेकंड पेपर है जो पॉलिटी है, डायनामिक एरिया से मतलब आप डायनामिक एरिया का मतलब डिस्कशन में हो, डिस्कशन में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, हैं, जिसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि अंग्रेज तो अब चले गए। उसके बाद सिंस इंडिपेंडेंस क्या हो रहा है, वो चीजें जो है हमें ज्यादा ध्यान में रखना। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में जो चीजें हैपनिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, जैसे ड्रॉट है, जैसे फ्लड है, तो इन चीज़ों का हमें बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, मॉनसूनल जैसे क्लाइमेटिक फिनोमेना इन इंडिया है, तो ये चीज़ें हमें बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी वही चीज़ें होंगी, जो चीज़ें एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देखें तो हमारी सोसाइटी कैसी है, और एक सिलेबस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमने जो है वो बार बार पेपर में इस्तेमाल करना है, और लेकिन जस्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो वर्ड एब्जॉर्ब हो जाए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वर्ड्स की में खास करके जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन मिलता है, यदि वर्ड्स का क्लैरिटी आए तो। कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेंथ। तो व्हाट अबाउट द पेपर 2, व्हाट विल यू लाइक टू से इन ब्रीफ अबाउट? मैं तो ये कहूँगा कि एक तो जैसे उसमें पॉलिटी स्ट्रक्चर जो इंडियन पॉलिटी है वो ज़्यादा है, तो इंडियन पॉलिटी में ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे आर्टिकल्स रट लें, बल्कि ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी को एट प्रेजेंट इफेक्ट कर रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मतलब आजकल डिस्कशन में हैं। डिस्कशन में वही चीज़ें आती हैं जिससे सोसाइटी हमारी इफेक्ट हो रही है। अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लिविंग लॉ ऑफ द लैंड और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। तो ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें कुछ भी चेंज हो रही है तो हमारी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। अगर हमारी सोसाइटी में कुछ भी चेंज हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट जो है वो आ रही है। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है,
और उस बेसिस पे कुछ कुछ जैसे चीज़ें जो पर्टिकुलर्स हैं, जैसे मर्सी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन से आर्टिकल में ये आ रही हैं, हमें इसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ हर रोज़ जो है वो न्यूज़ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर उसका जो है वो डेली एग्जांपल्स के साथ जोड़ना है, और आप अपना आंसर जस्टिफाई तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ लॉट मेनी एग्जांपल्स। गवर्नेंस वाले सेक्शन में क्या कहेंगे आप? गवर्नेंस वाले सेक्शन में ये है कि जो क्लियरली डिफाइन किया हुआ टॉपिक्स के अंदर हमें उन्हीं चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं कि गवर्नेंस में, जैसे एक टॉपिक मैं आपको बताऊं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, वो अपॉइंटमेंट पहले कैसे होती थी, अब कैसे होने जा रही हैं, अगर कोई चेंजेस है उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर चेंज, ये जाहिर सी बात है कि चेंज हमेशा अच्छी चीज़ के लिए आती है, और अगर अच्छी चीज़ आ रही है तो उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा था उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे या जितने भी साथी थे वो हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन से डरते थे, लेकिन मैं कभी इंटरनेशनल रिलेशन से डरता नहीं था, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन को हमेशा अपने घर से रिलेट करता था कि जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, हमारा पड़ोसी जो है उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, और उसके बाद पड़ोसी के बाद अब ज़रूरी नहीं कि हमारे रिश्तेदार ही पड़ोसी हों, पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, फिर हमारे रिश्तेदार जहाँ डिफरेंट रहते हैं तो उनके साथ हम कैसा बिहेवियर करते हैं, उसके बाद कोई अच्छा हमारा दोस्त है या नए दोस्त बनते हैं तो उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा चलता है, कोई पुराना दोस्त था उसके साथ हमारी नहीं बन रही तो हम उसके साथ कैसे चला रहे हैं। सेम यही प्रोसीजर जो अपने घर वाला, तो उस घर को ट्रीट करें एज ए इंडिया, कि हमें कैसा नेबर चाहिए, हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे अच्छे से बनाने चाहिए, हमें जो फॉर एग्जांपल यूएस के साथ हमें अच्छे से रिलेशन बनाना तो हमें क्यों बनाना है। तो ये हमारी ज़रूरत है ना, हमें कैसे रहना है माहौल में, और हमारी ज़रूरत डिफाइन करती है हमारी पब्लिक। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट आ जाता है पेपर 3 विच इज़ अ बिट डायनेमिक पेपर, तो उसमें उसके बारे में आप क्या? देखो, उसमें दो पार्ट हैं, जैसे उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम भी। हमें इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बड़ा अच्छे से तैयार कैसे करना है, हमें ये समझना है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चल रहा है, और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चलता है इसीलिए कि ताकि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों की एम्पावरमेंट हो। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉवर्टी से इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट से इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इससे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर उसके साथ साथ हम कोई भी स्कीम्स चलाते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम या नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कोई चलाते हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी के अंदर। और दूसरा उसमें पार्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, कि एक तो प्योर टेक्निकल पार्ट होता है कि कोई टर्म्स पूछते हैं, जैसे क्रायोजेनिक इंजन क्या हो गया, फंक्शनिंग ऑफ द इसरो क्या हो गया, फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो ये पार्ट जो है ये हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। और दूसरा उसमें ये है कि यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पब्लिक। इसमें क्विकली जो है डिजास्टर सिक्योरिटी जो जी हाँ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे बाहर जैसे फ्लड आएगा या ड्राट आएगी, अगर मान लो हमारे यहाँ फ्लड नहीं आएगा तो ड्राट आएगा, अगर ड्राट नहीं आएगा तो अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक नहीं तो सुनामी आएगी। तो ये डिफरेंट डिजास्टर है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज जैसे हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि इंडिया में कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है। और उसके बाद एक चीज़ जो ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें तो पता लग गया कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन हमारे जो डिज़ास्टर के चैलेंजेस क्या हैं ये हमें पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और इस पे हमारी बड़ी, वो बोलते हैं ना कि बाज जैसी हमारी नज़र होनी चाहिए, कि वो 1000 फुट ऊपर से वो अपने निशान को, तीर को, जो उसका जो शिकार है उसको पहचान लेता है और वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है और उसको उठा लेता है। हमेशा चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है, बिल्कुल, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट है, उस पर हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सारा पता चल जाएगा, सक्सेस स्टोरीज भी पता चल जाएंगी, हमारे ड्रॉबैक्स भी चल जाएंगे, हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर द ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स द डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है वो भी हमारी पता लग जाएगी। और सिक्योरिटी वाला पार्ट पे क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी वाले पार्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली द सिक्योरिटी कि हमें टेररिज्म से ख़तरा है, हमें माओइज़म से ख़तरा है, हमें इन चीज़ों से, हमें देखो सबसे बड़ा खतरा जो है वो इलिटरेसी से, हमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो गुर्बत पॉवर्टी से है, हमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो स्टेटस ऑफ द वुमेन और एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन कितनी हुई है उसका, वो सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर इफ़ यू लुक एट द सिनारियो एट द नेशनल लेवल, अबाउट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशंस आर फीमेल्स। हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उनका डिफरेंट डायमेंशंस में क्या क्या उनका रोल है,
इन चीज़ों को भी हमें समझना है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो नेचुरली ये सारी चीज़ें डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों के सिक्योरिटी वेलफेयर की बात। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं कि हमें मास्टरी किसी सब्जेक्ट पे नहीं करनी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो समझना जरूरी है। मास्टरी नहीं करनी है, हमें चीज़ों को समझना है और समझने के बाद उसको इस्तेमाल करना है बस। एंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा सकें, इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल लैंग्वेज तो बहुत सिंपल होनी चाहिए, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं कोई है। बिल्कुल रिसर्च करने कोई रिसर्च करना हमारे बस की बात ही नहीं है और ना हम कर सकते। सिर्फ सिलेबस कितना इंटेंसिव है उसकी जरूरत भी नहीं है जी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर हम प्री और मेंस के बीच में देखें तो 3 महीने का या 4 महीने का जरूरत फासला भी नहीं होता है इस कोर्स में, चूंकि रिसर्च करने के लिए फिर इसका जरूरत नेचर नहीं है इस जॉब का कि बिल्कुल, आपको करना। बिल्कुल। अब हम पेपर 4 पे थोड़ी सी बात करते हैं जी कि पेपर 4 के बारे में, चूंकि इसका जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जी ये 3 जो डायमेंशन है इसका, जी। उसके बारे में बिकॉज यू हैव गॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स इन दिस पेपर आल्सो, पेपर 4, जी जी। तो इसके बारे में आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई और क्या सजेशन हम देना चाहिए? मैंने जैसे इस पेपर को जो है वो सबसे पहले काम ये किया कि मैंने इस पेपर को बहुत अच्छे से समझा कि इस पेपर में जो ये एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, इनका असल मतलब मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है। और मैंने सिलेबस के एक एक वर्ड्स को डिफ़ाइन किया और उन वर्ड्स को डिफ़ाइन करने के बाद मैंने उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल ऐसे दिया कि इन वर्ड्स को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करता हूँ। एथिक्स तो ऐसी चीज़ है, चाहे आप खाना खाएं या पेपर दें या किसी के घर जाएं, किसी से बातचीत करें, ये तो हर जगह इस्तेमाल होना है। इंटीग्रिटी भी ऐसी चीज़ है कि ये हर जगह इस्तेमाल होती है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में यूज़ करें, और अगर हम प्रैक्टिकल वे में उसको यूज़ करें तो मुझे लगता है कोई भी सवाल आएगा, यू कैन ईजिली और यू कैन इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। उसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। उसमें जैसे एक एटीट्यूड एक सिलेबस का टॉपिक है, तो अगर आप एटीट्यूड को देखेंगे तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी उसको क्लैरिटी नहीं होगी उस वर्ड को समझने की, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कोई आदमी गलती करता है, अगर मान लो मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मैं हमेशा ये करता था, मुझसे कोई गलती हो जाती थी, मैं हमेशा एक्सेप्ट करता था ये मेरे से गलती होगी, मुझे आगे नहीं करनी है, मैं उससे एक सीख ले लेता था। और जैसे कोई बहुत सारे लोग और भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे मानते हैं कि मुझसे ये गलती होगी, नहीं ये मेरे वश की बात की है, हमसे ना हो पाएगा। राइट। तो ये एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप उस गलती को कैसे ले रहे हैं, आप उसको लेसन भी ले रहे हैं और आप उसको एक बैरियर भी ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे लेते हैं। एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ द एग्जाम, दैट इज इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। जी, So what is your opinion about this part of the? देखो, मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो किसी भी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो किसी भी और चीज़ का टेस्ट नहीं है। क्योंकि नॉलेज जो है वो सिविल सर्विस यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी स्टेज में आपका टेस्ट किया, फिर मेंस में भी आपका टेस्ट किया। तो इंटरव्यू में ऑल इन ऑल वो आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि इतनी हमारी एज नहीं है, उससे कभी कभार 2 गुना ज़्यादा उनका तजुर्बा होता है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनके सामने हम ब्लफ नहीं कर सकते, ईमानदारी से हमें खेलना। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई भी सवाल जो है वो सोच समझ के आंसर देना है। ये नहीं है कि उन्होंने सवाल पूछा हम स्टार्ट हो गए। जैसे मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि मैंने प्रिपरेशन अपनी जो की, लेकिन जो सवाल मुझसे उन्होंने पूछे वो ऑल इन ऑल डिफरेंट पूछे। मैंने वो सवाल कभी सोचे ही नहीं कि मुझसे ऐसा वो पूछेंगे। जैसे मैं उसमें से 2-3 इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब बड़ी स्माइलिंग से जैसे सवाल पूछ रहे थे, पूछते पूछते बड़ा सवाल पूछा बड़ा स्माइलिंग करते हुए कि मिस्टर बसीर एक बात बताओ कि आपकी हॉबी जो है वो हॉर्स राइडिंग है। ये तो अमीरों का, बादशाहों का, राजाओं का खेल है, उनका शौक है। ये आपको एज ए सिविल सर्वेंट ये शौक आपको क्या करना और आपको कैसे डेवलप हुआ? तो मैं 5 सेकंड के लिए तो चुप हो गया। मुझे यही नहीं आया कि सच में मैं भी सोचूं कि मैंने ऐसा सवाल सोचा ही नहीं था कि मुझसे ऐसा सवाल पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब सोचेंगे हॉर्स राइडिंग क्या होता है कैसे तो होता है? मैं ज़रा मैंने बोला कि मैडम कि शौक की कोई कीमत ही नहीं। अब जब शौक की कोई कीमत नहीं तो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या नवाब, क्या राजा, क्या सिविल सर्वेंट, तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये हॉबी जो है वो डेवलप हो गया, क्योंकि इसकी कोई शौक की कीमत ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे राजा बनने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगी? तो मैंने सोचा कि ये मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगी। तो मैंने ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था, और ऐसा होता भी है, और मैं कहीं मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा कि इट्स एन ई गवर्नेंस फॉर मी। तो उनके एकदम से उनके
जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए कि भाई घोड़ा ई गवर्नेंस इसके क्या लेना देना। तो मैंने उनको बोला कि मेरा जो ब्लॉक है जहाँ प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज़ वेरी इनएक्सेसिबल एरिया वेयर द रोड कनेक्टिविटी इज़ मिनिमम और इन सम वेयर देयर इज जीरो। तो मैं थ्रू हॉर्स राइडिंग लोगों के पास जाऊँगा, उनके डोर स्टेप पे जाऊंगा, उनके इश्यूज सुनूंगा, वहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो मेरी अथॉरिटी में नहीं है मैं हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करूंगा। तो ई गवर्नेंस का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि टू डिलीवर द सर्विसेज टू द पीपल एट देयर डोर स्टेप। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इस मामले में मुझे लगता है कि हॉर्स राइडिंग इज़ एन ई गवर्नेंस फॉर मी। तो वो थोड़ा सा स्माइल किया और चुप हो गए। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने आंसर दिए उनको जस्टिफाई मैंने किया। तो अगर कोई सुन रहा है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी उसने खुद से डेवलप करनी कि जवाब जो देना, क्योंकि हिसाब जो है वो अपना अपना होता है और हिसाब अपना अपना होता है। तो हम दूसरे का अंदाज़ बयां जो है वो या उसकी जो तर्ज़ बयां है वो हम उसकी जो अप्रोच है वो उसको हम नहीं अपना सकते हैं। हाँ, उससे अपना लेके हम अपने आंसर डेवलप कर सकते हैं। जो मैंने आंसर दिया वो मैंने जस्टिफाई किया, जो दूसरा आंसर देगा वो उसको वो जस्टिफाई। बेसिकली इवॉल्व करने की बात है कि थॉट प्रोसेस में जब तैयारी करने के दौरान जी यदि एक चिंतन का सिलसिला कैंडिडेट डेवलप करते रहे तो ये हैबिट डेवलप हो जाता है। एक दिन का काम नहीं कि एक ही दिन में बोलने का अंदाज डेवलप हो जाता है। हमें ये बोलना है। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे वसीर कि आप यू गॉट सर्विस ऑफ योर चॉइस। ये लंबा सफर जरूर रहा बट फाइनली यू गॉट ए चॉइस ऑफ योर जॉब ऑफ योर चॉइस। You got IAS, yes, and you have been also allotted home cadre. So, what is your feeling for the people of Kashmir? कि wherever you will be there, what do you have in your dream to do something for Kashmir? देखो, मेरा इस सर्विस में आने का एक मकसद और एक इरादा यही है कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सर्व करूँगा। I love to serve any part of India, but I would serve my people of जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। मैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड, वहाँ की जोग्राफी अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ, वहाँ की पॉलिटी अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ। क्योंकि घर का आदमी हूँ तो वो बोलते हैं ना घर का बेदी लंका उड़ाए। तो मैं अगर वहाँ का हूँ तो मैं उनके जो इश्यूज़ हैं, जो बातें हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगा और उनको डिलीवर करने की अच्छे से कोशिश करूँगा। फिर जो एक लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू लैंग्वेज होता है। तो मैं वहाँ की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता हूँ, बेटर वे में अंडरस्टैंड करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको कोशिश करूँगा कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए होंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, I always treated myself as a second stage because I always treated the peoples of Jammu and Kashmir as well as peoples of India as a first. So nation will be first, myself will be second. So definitely I will perform better and inshallah I hope so I will perform better. So I wish you a bright future and you become a great hope for the people of Jammu and Kashmir and the country on the whole. And you have got the most possible prestigious service for the country. So thank you very much for coming and chatting with me. It will be, I hope, a great value for the future aspirants. And I hope those who will be watching you, especially from Jammu and Kashmir, coming from village, they will be especially inspired by you. So God bless you. Wish you all the best. बहुत शुक्रिया।